اور کتاب و سنت کی جو باتیں ہم نے علماء کرام سے سنی ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج جمعہ کے خطبے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کیسے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بچپن میں آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ اور مجھے جو یہاں موضوع دیا گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام۔ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک ہی دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام اور آخری ایام ایک ہی دن میں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیونکہ آخری وہی ہوتا ہے جو اس سے لگا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ انک میت وانہم میتون۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو آئے تھے وہ چلے گئے، جو ہیں وہ جانے والے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ موت سے غافل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ موت بہت دور ہے۔ میرے بھائیوں، موت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ گزرتے جا رہا ہے۔ ہم سب کو موت کا جام پینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام کیا تھے، وہ سرسری طور پر میں آپ سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام آنن فانن عمرہ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے نکل گئے۔ مکہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر حدیبیہ ایک مقام ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں روک دیا گیا کہ عمرہ کرنے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ معاہدے میں بہت ساری باتیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی تھی۔ اس سے پہلے سابق مقرر نے صبر کے تعلق سے بڑی اہم بات بتائی کہ ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو دبایا گیا ہے، کمزور کیا گیا ہے، لیکن معاہدہ ہونے کے بعد جب آپ رخصت ہوئے، واپس ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت اتاری جس کو سورت الفتح کہتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ دب کے صلح کیا ہے، لیکن اللہ نے فتح مبین کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد مسلمان مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں انتہائی امن و شانتی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور امن کا ماحول ہوگا۔ یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ
मक्का मुकर्रमा गए और मक्का मुकर्रमा को फतेह किया गया। यही वो मक्का है जहां पर आपको और आपके साथियों को मारा गया, सताया गया, तकलीफ पहुंचाई गई। जो छोड़कर जाने वाले थे उनको जबरदस्ती रोका गया, बहुत सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ा। लेकिन ठीक 8 साल के बाद यानी सन 8 हिजरी में पूरी कुव्वत और ताकत के साथ 10,000 की फौज लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतेह कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह मक्का को सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया, इसलिए कि अल्लाह का घर अब अमन और सुकून के साथ उसमें इबादत कर सकते हैं। नबी की बेसत का मकसद पूरा हो गया, ये इस बात की दलील है कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। उसके बाद आखिरी हज आपने सन 10 हिजरी में किया। 6 में सुलह हुदैबिया, 8 में फतेह मक्का और सन 10 हिजरी में आपने हज किया। उस वक्त आपके साथ कितने आदमी थे? एक रवायत के मुताबिक 1,25,000, दूसरी रवायत के मुताबिक 1,40,000। 10 साल में आपके पास कितनी बड़ी फौज तैयार हुई? 1,40,000 सहाबा के साथ आपने हज किया और यही आपका आखिरी हज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी बताई जिससे ये मालूम होता है कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। पहली बात आपने बताई कि ऐ मेरे सहाबा, हज का तरीका मुझसे सीख लो, मुमकिन है मैं अगले साल में तुमसे मुलाकात न कर सकूं। ये इस बात की दलील थी कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अय्याम में मुज़दलिफा में और अरफात में और मिना में जो खुतबे दिए, जो पैगामात दिए, उससे भी इस बात का इशारा मिलता था कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। बहुत सारी वसीयतें की आपने मुसलमानों को उनके मातहतीन के ताल्लुक से और नमाज के ताल्लुक से, खवातीन के ताल्लुक से, गुलामों के ताल्लुक से आपने बहुत सारी वसीयतें फरमाई जो इस बात की दलील थी कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से फारिग होने के बाद आए, एक जनाजे में आपने बकी में शिरकत की। आप वापस आ रहे थे, आपके सर में दर्द शुरू हुआ और ये दर्द आखिर तक आपके साथ में रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे आपके सर के दर्द की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला आपके उस आखिरी अय्याम को अल्लाह तबारक व तआला वही ये दर्द सर और बुखार जो था ये आखिरी वक्त तक आपके साथ में रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में अपने रब से मुलाकात कर ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बुखार बढ़ता गया, दर्द सर बढ़ता गया, नकाहत और कमजोरी बढ़ती गई, लेकिन इन अय्याम में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ अदल व इंसाफ का मामला करते थे। आज हम में बहुत सारे लोग जोशीले, जज्बाती, नबी की सुन्नत का सहारा लेकर के अपने जज्बात और ख्वाहिशात को पूरी करने वाले कहते हैं इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, 2 शादियां करके 2 बीवियों को नहीं संभाल सकते हैं, अदल व इंसाफ नहीं कर सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त 9 बीवियों के साथ इंसाफ किया और आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता है, कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू फालिज ज़दा होगा, गिरा होगा, जिससे लोग देख करके ये समझ जाएंगे कि ये लोगों के दरमियान, अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता था। शादी कर लेना, 2 शादी कर लेना, 3 शादी कर लेना कमाल नहीं है, उनके दरमियान इंसाफ करना, अदल करना ये बहुत कमाल की बात है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के इन आखिरी अय्याम में नकाहत और कमजोरी की वजह से आपको एक दूसरे बीवी के यहाँ मुंतकिल होना मुश्किल होता था। आप हमेशा पूछते थे मैं कल कहाँ रहूंगा, मैं कल कहाँ रहूंगा, कल किसके यहाँ मेरी बारी है। अज़वाज मुतहहरात ने समझ लिया कि शायद आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारना चाहते हैं। तमाम बीवियों ने
इत्तेफाक राय मशवरा करके ये पैगाम दे दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप जहां चाहे क़याम कर सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे आयशा में मुंतकिल कर दिया गया। अब उसके बाद आप हमेशा हुजरे आयशा ही में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 5 दिन पहले का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे 7 मशकीज़ों का पानी मेरे ऊपर डाला जाए। 7 ऐसे मशकीज़े जिनका मुंह ना खोला गया हो, 7 घड़े पानी मेरे ऊपर डाले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक आपको एक बड़े टब में बैठाया गया। आपके ऊपर मशकीज़े और घड़े के पानी डाले गए, यहाँ तक कि 7 मशकीज़ों का पानी डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जरा ठंडा हुआ, आपने जरा फरहत महसूस की, आपने इशारा किया, बस बस बस, अब बस कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे के बाद वो रोक दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 दिन आपकी वफात से पहले 7 मशकीज़ों का पानी आपके ऊपर डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे को अख्तियार दिया है, वो चाहे तो दुनिया में अभी कुछ दिन तक रह सकता है और चाहे तो अब दुनिया से रुखसत हो सकता है। कबल इसके कि मैं ये बात आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, तमाम अंबियाए किराम को, तमाम नबियों को अल्लाह की तरफ से ये इजाजत दी गई है कि अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मजीद अगर कुछ दिन दुनिया में रहना चाहते हैं तो ये अंबिया की खासियत है, अगर वो चाहें तो उनकी जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया है, चाहे तो अभी दुनिया में रहे और चाहे तो अल्लाह से मुलाकात करे, लेकिन उस बंदे ने अल्लाह से मुलाकात को तरजीह दी। ये वाक़या सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ारो क़ितार रोने लगे। सहाबा ने फरमाया, इस बूढ़े आदमी को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुजुर्ग की, एक आदमी की बात बता रहे हैं और ये बूढ़ा आदमी रो रहा है। मेरे भाइयों, इस उम्मत के सबसे बड़े फकीह अगर कोई है, सबसे ज्यादा दूरंदेश कोई है, तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिन्होंने नबी के इशारे को समझ लिया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इशारा किसकी तरफ है, आप ही हैं जिसको अख्तियार दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात को तरजीह दी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किया, मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। चारों तरफ दरवाजे थे, लोग मुख्तलिफ दरवाजों से आते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा बाकी रखा जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बहुत ज्यादा है और उनकी फजीलत में बहुत सारी हदीसें हैं। ये वाक़या भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत के लिए है कि उनका दरवाजा बाकी रखा गया, उसको बंद नहीं किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबे किराम को इकट्ठा किया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दोस्त बनाया है और मैं किसी और को दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। अगर मैं इंसानों में किसी को अपना दोस्त बनाता तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतना काम किया है दीन का, मैंने सारे लोगों के कामों का कर्ज और उनका एहसान चुका दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के एहसानात को मैं नहीं चुका सका हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको इसका बदला देगा। अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो वो अबू बकर सिद्दीक होते। अब कोई ये ना समझे कि नबी ने किसी को दोस्त नहीं बनाया, नबी ने अबू बकर सिद्दीक को दोस्त बनाया था, लेकिन दुनिया की हद तक। अब इस दोस्ती पर अल्लाह की दोस्ती को तरजीह दी गई, यानी अब आपने अल्लाह के पास जाना पसंद कर लिया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अपने आप को मुसलमानों के सामने पेश किया। मस्जिद नबवी में आए, मुसलमानों के सामने पेश किया और आपने ऐलान किया, मैं इंसान हूँ
और एक लंबी जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है। हो सकता है कभी नीच ऊंच हो गया हो सकता है मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया हो सकता है मैंने किसी के साथ नाइंसाफी की हो सकता है मैंने किसी के साथ ज़ियादती की हो। ये मेरा पीठ हाजिर है, अगर कोई बदला लेना चाहे तो दुनिया में ले ले। ये कौन ऐलान कर रहा है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं। हमारा अकीदा है आप हमारे इमाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के इमाम हैं। आप अफजलुल बशर हैं। आप सैयदे बनी आदम हैं। आप आदम की औलाद में सबसे अफजल हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान ऐलान किया कि कोई बदला लेना चाहे मुझसे ले सकता है, मेरी पीठ हाजिर है। सहाबा किराम सिसकियां लेकर रोने लगे। कौन था जो नबी से बदला लेता? मेरे भाइयों, ये इस बात की दलील है कि आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आपने फरमाया दुनिया में माफी तलाफी कर लेना, दुनिया में माफी मांग लेना, दुनिया में बदला दे देना, ये आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बेहतर है। हम में से कितने लोग हैं, बारहा मैं ये कहता रहता हूँ, एक अमीर गरीब पर जुल्म करता है लेकिन उसको चाहिए कि उसने नादानी की, गलती की, एक गरीब से माफी मांग ले। भाई शैतान हावी हो गया था, मैंने तेरे ऊपर जुल्म कर दिया, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह की कसम कहता हूँ कि उसकी इज्जत उस गरीब के दिमाग में और बढ़ जाएगी, उसके नजदीक और बढ़ जाएगी। माज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। अल्लाह ताला माफी मांगने से, माफ करने से इज्जत को बढ़ा देता है। मेरे भाइयों, हम माफी नहीं मांगना चाहते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हम अपने आप को सबसे अफजल समझते हैं। कायनात का सबसे अफजल इंसान सहाबा से माफी मांग रहा है कि या तो मुझे माफ कर दो या तो मेरी पीठ हाजिर है, बदला ले लो। हम नबी से अफजल हो गए, हमारा मकाम नबी से बढ़ गया। हम किसी गरीब से माफी नहीं मांगना चाहते हैं, हम किसी के सामने तवाज़ो नहीं अख्तियार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की मदद आ जाए। कहां से अल्लाह की मदद आएगी? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सहाबा के सामने पेश किया और कहा कि कोई बदला लेना चाहे ले सकता है। वफात से 4 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 3 वसीयतें फरमाई। पहली वसीयत ये थी कि अरब की सरजमीन को मुशरिकों से पाक कर दिया जाए। दूसरी वसीयत ये थी कि जो डेलीगेट्स आते थे, जो बाहर से वफूद आते थे, उनकी उसी तरह इज्जत करना जिस तरह मैं करता रहा हूं। बाहर से आने वाले डेलीगेट्स, बाहर से आने वाले वफूद, इनकी बड़ी तकरीम करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 वसीयतों का जिक्र किया और सहाबी रावी तीसरी वसीयत भूल गए। लेकिन एक दूसरी रवायत में है, तीसरी वसीयत ये थी कि अपनी जिंदगी में कुरान को मजबूती से पकड़ना, कुरानी तालीमात पर अमल करना। ये वफात से 4 दिन पहले की बात है। उसके बाद 4 दिन पहले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज खुद पढ़ाई और इशा में आपकी तबीयत बिगड़ गई। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़ान दी, आपके दरवाजे पर आए, कहा सलात या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, नमाज का वक्त शुरू हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने का इरादा करते हैं, गशी तारीख हो जाती है। थोड़ी देर के बाद होश आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या नमाज हो गई? सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल आपका इंतजार है। 3 बार अल्लाह के नबी ने इरादा किया कि आप उठें, चलें, नमाज पढ़ाएं, लेकिन नकाहत और कमजोरी की वजह से बार बार आपके ऊपर गशी तारी हो जाती है। तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो वो आज से नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुसल्ला अबू बकर के हवाले किया। मैं आपको ये बता दूं कि ये मुसल्ला और ये मिंबर, ये मुसल्ला और ये मिंबर, ये कौम की बहुत बड़ी अमानत है। जब तक हमारे इस मुसल्ले पर और इस मिंबर पर ईमानदार लोग खड़े होते रहेंगे, इंशाअल्लाह उम्मत को कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये मुसल्ला और ये मिंबर गैर लोगों को दे दिया गया, ना तजर्बाकार लोगों को दे दिया गया, रियाकार लोगों को दे दिया गया,
जो मुसल्ले का और मिंबर का हक नहीं अदा कर सकते हैं, उस दिन कौम की तबाही और बर्बादी हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का किस्सा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुसल्ला किसके हवाले किया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया, इसलिए कि यही सबसे बड़ी अमानत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन पहले आपको जरा इफाका हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में मस्जिद में तशरीफ लाए। आपने सहाबे किराम को इकट्ठा किया, आपने बहुत सारी नसीहतें फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से खिताब फरमाया और बहुत सारी चीजें आपने सहाबे किराम को बताई। एक दिन पहले आपको दवा पिलाने की कोशिश की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकाहत और कमजोरी आ गई है, आपको दवा पिलाई जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मना कर दिया, नहीं, दवा नहीं पिलाना। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने यह समझा कि शायद अल्लाह के रसूल दवा की कड़वाहट की वजह से मना कर रहे हैं। आपके ऊपर गशी तारी हुई तो आपको दवा पिला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए तो आपने कहा जितने लोग यहाँ मौजूद थे सबको दवा पिलाई जाए। सही बुखारी की हदीस है, सबको दवा पिलाई गई। कहा इल्ला अब्बास, हज़रत अब्बास को नहीं पिलाई जाएगी। क्यों? इसलिए कि दवा पिलाने के वक्त वो हुजरे में नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत के मुताबिक और हुक्म के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक तमाम को दवा पिलाई गई। वफात का दिन यानी पीर का दिन, पीर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामत करा रहे हैं। आपने हज़रत आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया, हुजरे का पर्दा हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और तमाम के तमाम सहाबा इंतहाई अमन और सुकून के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। आपको इत्मीनान हुआ कि कौम मुत्तहिद है, आपको इत्मीनान हुआ कि उम्मत मुत्तहिद है, आपको इत्मीनान हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक उम्मत की बात को संभाल सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा हटाया, आपकी खुशबू से पूरी मस्जिद मुअत्तर हो गई, पूरी मस्जिद मुअत्तर हो गई। सहाबा कहते हैं ऐसा लग रहा था कि नबी की खुशबू को सोख करके लोग अपनी नमाजों को तोड़ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंतहाई खूबसूरत मंजर देखा और पर्दा गिरा दिया, पर्दा गिरा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान का इजहार किया। ये उसी दिन की बात है। थोड़ा सूरज निकला, नाश्ते का वक्त था। आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाया, अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाया, कान में कोई बात कही। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ारो क़तार रोने लगी, ज़ारो क़तार रोने लगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बुलाया, सीने से लगाया और उसके बाद कान में कुछ फिर कहा। फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हंसने लगी। एक ही मजलिस में, एक ही वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार सीने से लगाया, 2 बातें कहीं, एक बात से रोने लगी, दूसरी बात से हंसने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कई दिनों के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, वो बात बताओ कि तुम्हारे वालिद ने क्या कहा था, तुम रोने लगी थी, क्या कहा था, तुम हंसने लगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, पहली बार जब मेरे वालिद ने मुझे सीने से लगाया तो कहा, बेटी आज मैं तुझसे रुखसत हो जाऊंगा, आज मैं तुझसे रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर मैं रोने लगी। अपने बाप की जुदाई में, अपने वालिद की जुदाई में मैं रोने लगी। नबी ने देखा कि मेरी बेटी रो रही है, फिर सीने से लगाया, कहा बेटी मत रो, हमारे खानदान में सबसे पहले तू ही मुझसे मिलेगी, हमारे खानदान में सबसे पहले तू ही मुझसे मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी वफात हो गई और आपके खानवादे की ये पहली खातून है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। हज़रत अब्दुर्रहमान
बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, हुजरे आयशा में पहुंचे। ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई हैं, उनके हाथ में मिसवाक थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बार बार मिसवाक की तरफ देख रहे हैं, नकाहत है, कमजोरी है, बोल नहीं सकते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, मेरे सरताज आप मिसवाक करना चाहते हैं? नबी ने इशारा किया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से वो मिसवाक लेती हैं, नबी के हवाले करती हैं। नकाहत और कमजोरी इतना ज्यादा है, आप मिसवाक कर नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली। हजरत आयशा ने कहा, सरताज इजाजत दीजिए तो इसको कूचा बना करके नरम कर दो। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ नरम कर दो। आपने इशारा किया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस मिसवाक को नरम किया और उसके बाद नबी के हवाले कर दिया। खुशी से कहती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक को और हमारी थूक को भी जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक कर दिया। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कूचा बना करके नरम करके वो मिसवाक नबी के हवाले करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत फातिमा बहुत परेशान है और बार बार कह रही हैं, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखें, मौत की सख्तियां, मौत की कड़वाहट, मौत का वो मंजर और मौत का वो वक्त बहुत ही खतरनाक होता है। अल्लाह हम सबको मौत की सख्तियों से महफूज रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिसकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मैं मौत की सख्तियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्तियों को देख करके फातिमा तड़प रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी आज के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आप आज अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, नबी की तकलीफ बढ़ती गई, घबराहट बढ़ती गई। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम चादर ओढ़े हुए हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, घबराहट में कभी चादर को हटा देते, कभी चादर को ओढ़ देते, कभी हटा देते, कभी ओढ़ लेते, कभी चेहरा ढक लेते, कभी खोल देते। कहती हैं पानी का प्याला रखा हुआ था और घबराहट इतनी ज्यादा थी, बार बार अपने हाथ को प्याले में डालते और अपने चेहरे पर मलते और कहते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत की सख्तियां बहुत तेज हैं, मौत की सख्तियां बहुत तेज हैं। मेरे भाइयों, मौत की जिंदगी गुजारने वालों, मौत का वो मंजर याद करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो मौत ऐसी जगह पर आ जाए कि हमारे लिए इबरत और नसीहत बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की सख्तियों से पनाह मांग रहे हैं। मौत का जाम बहुत कड़वा है, मौत की सख्तियां बहुत तेज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मौत की सख्तियों से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूदियों पर लानत करे, अल्लाह नसरानियों पर लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। आप चाहते थे कि आप अपनी उम्मत को मुतनब्बा करें कि कहीं आपकी कब्र पर लोग मस्जिद न बना ले, आपकी कब्र को सजदा न करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज से दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना। ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना कि लोग आकर सजदा करें। मेरे भाइयों, अल्लाह का एहसान है, नबी की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। कायनात का सबसे अफजल इंसान, लेकिन आपकी कब्र पर कोई सजदा नहीं कर सकता, आपकी कब्र पर कोई सजदा नहीं कर सकता है। अल्लाह ने आपको महफूज रखा है
اور میرے بھائیوں دعا دیجئے سعودی حکومت کو جنہوں نے بدعات و خرافات اور شرک کا قلعہ کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا. آج لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بدعات و خرافات اور شرک سے کی سنگینیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کی قبر کو کھول دیا جائے اور لوگ جا کر کے وہاں سجدہ کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبروں پر سجدہ قبر پر سجدہ کرنے لگیں گے تو آپ کی قبر کو بھی میدان میں بنایا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کی قبر کو بت پرستوں سے قبر پرستوں سے محفوظ رکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. والحقنی بالرفیق الاعلی، اور اے اللہ مجھے رفیق اعلی سے ملا دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کان لگایا نبی کے منہ پر تو میں نے سنا آپ یہی دعا پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ورحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما. والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے اور آپ کا سر لڑک گیا. آپ کا سر لڑک گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس وقت نبی کا سر میری گود میں تھا، میری داڑھی نبی کی داڑھی سے ٹکرا رہی تھی، اور جب آپ کا سر لڑک گیا مجھے یقین ہو گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. آنن فانن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور اعلان کیا سنو اگر کوئی شخص کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو یہ عمر کی تلوار اس کی گردن اڑا دے گی. میرے بھائیو یہ جذبات کی بات تھی، یہ محبت کی بات تھی، یہ احساس کی بات تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مدینے میں کوہرام مچ گیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی نبی کی وفات کو اگر تسلیم کر لے گا تو اس کی گردن مار دیں گے. میرے بھائیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مسجد کے دوسرے کونے میں کھڑے ہو گئے. عمر فاروق کو اشارہ کیا لیکن غم کی وجہ سے، غم کی شدت کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کونے میں کھڑے ہوئے. وہ مجمع جو ابھی تک عمر بن خطاب کو سن رہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے تو یہ مجمع سمٹ کر ابوبکر کی طرف چلا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابوبکر کے بعد ہی کوئی ہے، ابوبکر سے پہلے کوئی نہیں ہے. تب اس کے کہ میں یہ واقعہ بتاؤں آپ کو ایک بات بتا دوں. اس امت کو دو لوگوں نے بہت ہی نازک وقت میں سنبھالا ہے. ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی وفات کا مسئلہ ہوا تب امت کو سنبھالا، اور ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب خلق قرآن کا مسئلہ ہوا تین بادشاہ گزر گئے. ایک بادشاہ گزر گیا، اس کا بیٹا بادشاہ